کراچی سے خبر تک میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور سب سے پہلے نظر ڈال لیتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ ملکہ کوثر مری میں جعلی کرنسی کا کاروبار کرنے والا گینگ گرفتار، ملزموں کے قبضے سے ہزاروں امریکی ڈالر اور پاکستانی جعلی کرنسی برآمد۔ شیخ زاید اسپتال کو پنجاب حکومت کے ماتحت کرنے کا فیصلہ واپس لیا جائے، چیئرمین شیخ زاید اسپتال ڈاکٹر ظفر اقبال کی پریس کانفرنس۔ منڈی بہاؤدین میں نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی کے لیے 1 ارب روپے سے مائکرو فائنانس فنڈز قائم کر دیے گئے۔ رزلٹ کارڈ نہ ملنے پر گورنمنٹ ڈگری کالج برائے خواتین پھول نگر کی طالبات کا احتجاجی مظاہرہ۔ کراچی میں ماہی گیر نے 40 فٹ لمبی شارک پکڑ لی، شہریوں کی بڑی تعداد مچھلی دیکھنے کے لیے فشری پہنچ گئے۔ نواب شاہ میں مدرسہ معلم نے 12 سالہ طالب علم کو مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ سکھر گٹو برانچ کالونی امپلائیز ایسوسی ایشن کا مطالبات کے حق میں احتجاجی مظاہرہ۔ اور کوئٹہ میں درسی کتب کی فراہمی میں تاخیر، پختون اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کا تحریک چلانے کا اعلان۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، کراچی سے خیبر تک کے سفر کا آغاز کریں گے صوبہ پنجاب سے۔ اور پنجاب میں سب سے پہلے بات ملکہ کوثر کی۔ مری میں پولیس نے وسیع پیمانے پر جعلی کرنسی کا کاروبار کرنے والے گینگ کو گرفتار کر کے ملزموں کے قبضے سے ہزاروں امریکن ڈالر اور پاکستانی جعلی کرنسی برآمد کر لی ہے۔ اے ایس پی مری عباس مجید مروٹ نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ مال روڈ مری پر واقع ایک کرافٹ کے مالک اعجاز کی دکان پر ملزم محمد طارق نے 4000 روپے مالیت کی انگوٹھی خریدنے کے بعد 100 امریکی ڈالر کا جعلی نوٹ دیا۔ تاجر نے شک پڑنے پر پولیس کو اطلاع کر دی، جس پر پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کا کہنا ہے کہ وہ 10 سال سے جعلی کرنسی کا کاروبار کر رہا ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ بات کریں گے راولپنڈی بورڈ کی، جس کے فرسٹ ایئر کے رزلٹ میں بے قاعدگیوں کے خلاف چکوال کے طالب علموں نے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے ٹریفک بلاک کر دی۔ متاثرہ طالب علموں کا کہنا تھا کہ بورڈ حکام نے جو ٹیمیں رزلٹ کی درستگی کے لیے بھیجی ہیں وہ طالب علموں سے ناقص رزلٹ کے بارے میں اپنی آواز کو دبانے اور رزلٹ کے بارے میں تسلی بخش ہونے کی رپورٹ پر آمادہ ہونے کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے۔ اس موقع پر مسلم لیگ نون کی این پی اے بیگم عفت لیاقت علی خان، ضلعی صدر مسلم لیگ نون چودھری لیاقت علی خان اور چودھری حیدر سلطان نے متاثرہ طالبات کو یقین دلایا کہ ان کا تعلیمی سال کسی صورت ضائع نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ڈی سی او منڈی بہاؤدین امین چودھری نے کہا ہے کہ دین اسلام پیار، محبت اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ امت مسلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہو کر ہی اپنی زندگیوں میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ منڈی بہاؤدین کے درس آستانہ عالیہ بھبکی شریف میں منعقدہ محفل میلاد سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بھبکی شریف میں میلاد کی اس پرنور محفل کا انعقاد بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے ہمارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتہائی عقیدت اور پیار کا ثبوت ہے۔ امین چودھری نے کہا کہ ذاکر حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر سید محمد مسعود الحسن شاہ مشہدی اور سید محمد شبیع الحسن مشہدی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر روشنی ڈالی۔ بعد ازاں ڈی سی او امین چودھری نے محفل کے اہتمام پر غربا میں عیدی تقسیم کی، جبکہ سجادہ نشین پیر نور الحسن مشہدی نے اسلام کی سربلندی اور ملک کی سلامتی کے لیے اجتماعی دعا کرائی۔ اس موقع پر شرکاء میں لنگر بھی تقسیم کیا گیا۔
जिला गुजरांवाला में एजुकेटर्स की सीटों के लिए मेरिट लिस्टें आवेजा न किए जाने पर मुश्तिल उम्मीदवारों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। एहतजाजी मुजाहरे के दौरान मुश्तिल उम्मीदवारों ने बताया कि इंटरव्यू के लिए मेरिट लिस्टें आवेजा न करने के साथ यहाँ बैठने के लिए कुर्सियां भी मौजूद नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं है। इसके बायस उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब ईडीओ एजुकेशन रियाज अहमद सोही और डीओ सेकेंडरी शौकत अली ताहिर ने बताया कि मेरिट लिस्टें आवेजा करने के लिए जगह नहीं है, ताहम मेरिट लिस्ट के मुताबिक इंटरव्यूज किए जा रहे हैं। हुकूमत पंजाब ने मंडी बहाउद्दीन में नौजवानों को रोजगार देने के लिए 1 अरब रुपए से माइक्रो फाइनेंस फंड कायम कर दिया है। मंडी बहाउद्दीन में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इख्वत माइक्रो फाइनेंस डॉक्टर अमजद साकिब ने माइक्रो फाइनेंस फंड की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब के माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम को इदारा इख्वत मॉनिटर करेगा, जबकि तादाद कर्जों की तकसीम का अमल मुकम्मल तौर पर शफाफ होगा। उनका कहना था कि इख्वत ने गरीब अफराद को रोजगार फराहम करने के लिए 10,000 से 50,000 रुपए तक 1.5 अरब रुपए की रकम 1.25 लाख अफराद में माइक्रो फाइनेंस स्कीम के तहत तकसीम की है। इस मौके पर जफर इकबाल ने कहा कि उन्होंने अपने गांव रुकन से माइक्रो फाइनेंस के इज्जा के लिए अपनी जेब से 2 करोड़ रुपए के फंड्स फराहम किए हैं। बातज़ा माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम के तहत चेक्स भी तकसीम किए गए। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए खवातीन फूलनगर सैकड़ों तालिबात ने रिजल्ट कार्ड न मिलने पर कॉलेज के हाथ में एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए धरना दिया। इंटरमीडिएट की 200 तालिबात ने रिजल्ट कार्ड्स न मिलने पर एहतजाज करते हुए बताया कि रिजल्ट कार्ड की अदम फरहमी से उन्हें मुख्तलिफ कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में दाखिले नहीं मिल रहे। अगर इंतजामिया ने उन्हें बर वक्त रिजल्ट कार्ड फराहम नहीं किए तो उनके तालीमी साल ज़ाया होने का खतरा है। उन्होंने खादिम आला पंजाब से मुतालबा किया कि वो उन्हें रिजल्ट कार्ड्स की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दाम करें ताकि वो दीगर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेकर अपना तालीमी सफ़र जारी रख सकें। मुरीद के में रदाए ज़हरा स्कीम के तहत हुजूर सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक की निस्बत से 63 शादियों के 7वें इज्तिमाई प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। रदाए ज़हरा के जरिए मुंतकिब की जाने वाली इस तकरीब में अपनी नौयत की एक मुनफरद स्कीम के 7वें साल भी तादाद दुल्हनों को 40 लाख रुपए मालियत का जहेज फराहम किया गया, जबकि शादी के लिए दोनों खानदानों के 20-20 अफराद को बाराती के तौर पर भी मदऊ किया गया। इस मौके पर इतवार कॉरपोरेशन के MD मियां मोहम्मद अनवार, मियां गुलाम मोहिउद्दीन, हाजी जावेद मतक, राना जावेद, इसके साथ साथ मेमोरियल ट्रस्ट अस्पताल मुरीदी के चेयरमैन शेख एजाज भी मौके पर मौजूद थे। बच्चों को जहेज के लिए 40 लाख रुपए से ज़ायद के अखराजात का भी एहतमाम किया गया। शादियों की इस इज्तिमाई तकरीब में बारातियों और जोड़ों समेत 2000 के करीब अफराद ने शिरकत की। बादशाह दुरूद सलाम के साए में नए जोड़ों को रुखसत किया गया। तकरीब के आखिर में सैयद आबिद हुसैन शाह ने इस्लाम, पाकिस्तान और नए शादीशुदा जोड़ों के लिए खुसूसी दुआ भी कराई। चेयरमैन शेख ज़ैद अस्पताल डॉक्टर जफर इकबाल ने कहा है कि शेख ज़ैद अस्पताल को पंजाब हुकूमत के मातहत करने के फैसले से मुलाजमीन बेचैनी का शिकार हो गए हैं, ये फैसला वापस लिया जाए। शेख ज़ैद अस्पताल लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डॉक्टर जफर इकबाल का कहना था कि ये अस्पताल वजीर आजम और कैबिनेट डिवीजन के मातहत है, जिसको पंजाब हुकूमत के कंट्रोल में देने से करोड़ों रुपए के तौसीही मंसूबे मुतासर होंगे। उन्होंने कहा कि इस हुकूमती फैसले के बाद अस्पताल मुलाजिमीन में तशवीश की लहर दौड़ गई है। शेख ज़ैद अस्पताल एक ट्रस्ट है, लिहाजा इस फैसले पर नजरसानी करके मुलाजिमीन के तहफ्फुज़ात दूर किए जाएं। फेडरल गवर्नमेंट का अदारा है जो कि कैबिनेट डिवीजन के तहत है, जो कि पहले भी डिवॉल्व नहीं हुआ था टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और उसकी सिर्फ एक रिक्वेस्ट ही उनको दी जा सकती है कि इसको डिवॉल्व ना होने दिया जाए, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट में ही रखा जाए। इस मौके पर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदर डॉक्टर शाहिद मलिक ने कहा कि पंजाब हुकूमत के तहत चलने वाले अस्पतालों की कारकर्दगी पहले ही आवाम के सामने है। ऐसे में अगर शेख ज़ैद अस्पताल को भी इसके कंट्रोल में दे दिया जाता है तो इसकी कारकर्दगी पर भी मनफी असर पड़ेगा। शहर इकबाल की सियालकोट के नवाही गांव नवा पिंड अराइया में सड़कों की नामुकम्मल तामीर और मरम्मत शहरियों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। हजारों अफराद की आमद-ओ-रफ्त के लिए इस्तेमाल होने वाले नवा पिंड अराइया रोड की तामीर और मुरम्मत के लिए 1 साल कबल 9 लाख रुपए के फंड्स जारी किए गए थे, लेकिन ठेकेदार तामीर का काम अधूरा छोड़कर गायब हो गया, जिसकी इलाका मकीन परेशानी का शिकार है। इस इलाके में अहले मोहल्ला के मुताबिक तरक्याती ग्रांट ठेकेदार हड़प कर चुका है, लेकिन कोई भी कार्रवाई करने के बजाय मुतल्लिका हुकाम खामोश तमाशाई बने हुए हैं। वकीलों ने आला हुकाम से
इस्लाही अहवाल का मुतालबा किया है। उच्च शरीफ में धमाके के 7 घंटे बाद मुतल्लिका दुकान में अचानक आग भड़क उठने से कीमती साजो सामान जलकर राख का ढेर बन गया। बताया गया है कि धमाके के बाद लोहे के टुकड़े मुल्हिका दुकान में गिरने से चंद घंटे बाद आग भड़क उठी, जिससे स्क्रैप, कपास और दीगर कीमती सामान जलकर राख हो गया, जबकि दुकान की छत जमीपोस हो गई। अहले इलाका की इत्तला पर फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर 4 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। डिस्ट्रिक्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट नारोवाल के सालाना इंतखाबात में मलिक मुजाहिद खान बिला मुकाबला सदर और चौधरी अमीन गोराया जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए हैं। चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड विलायत लाभबट की ज़ेर निगरानी होने वाले इंतखाबात में मलिक मुजाहिद बिला मुकाबला चौधरी अमीन गोराया जनरल सेक्रेटरी, चेयरमैन चौधरी मोहम्मद मुश्ताक और फाइनेंस सेक्रेटरी अली रजा भट्टी भारी अक्सरियत से कामयाब हो गए हैं। इस मौके पर चौधरी एहसन इकबाल ने खिताब करते हुए कहा कि सहाफ़ी माशरे में अपना अलग मुकाम रखते हैं। मौजूदा दौर में मीडिया के किरदार को कभी फरामोश नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि सहाफ़ी अवाम को हक़ाइक़ से आगाही फराहम करने के साथ साथ उनकी रहनुमाई भी करते हैं। साबिक तहसील नाज़िब ख्वाजा मोहम्मद वसीम बट ने कहा कि सहाफ़ी बिरादरी इज्तिमाई तौर पर माशरती मसाइल को उजागर करने में अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। उनका कहना था कि नारोवाल में सहाफ़ियों के लिए 20 लाख रुपए की लागत से प्रेस क्लब की तामीर का काम भी शुरू कर दिया गया है। पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर फैसलाबाद के एन वस्त में वाक़ रेलवे कॉलोनी इंतजामिया की अदम तवज्जुही के बाइस मसाइल का गढ़ बन चुकी है। जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं, जबकि गंदे नाले से निकलकर लोगों के घरों में पानी दाखिल होता रहता है और ये अजाब बन चुका है इलाका मकीनों के लिए। इलाका मकीनों ने वक्त न्यूज़ से बात करते हुए बताया कि डीसीओ फैसलाबाद को उनके इलाके रेलवे कॉलोनी की तरफ भी नज़र डालनी चाहिए। यहाँ टीएमए का अमला कूड़ा उठाते में आता ही नहीं है, बल्कि नुमाइश के लिए यहाँ पर ट्रॉली खड़ी कर दी गई है। सबसे बड़ा मसला गंदे नाले का है, जिसका पानी उनके घरों में दाखिल हो जाता है, जबकि जगह जगह गंदा पानी खड़ा होने से मच्छरों की बहुतात से मुहलिक अमराज फूटने का खदशा है। उन्होंने मुतालबा किया कि उनके इलाके में सफाई के इंतजाम को बेहतर बनाने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। सियालकोट में मुबैना पुलिस तशद्दुद से हलाक होने वाले नौजवान के लवाहिकीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया है। थाना सदर के गांव बंदल के रिहायशी एक बच्चे के बाप इम्तियाज और इसके बहनोई कदीर को पुलिस ने 3 हफ्ते कबल चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया था, जिन्हें तफ्तीश के दौरान मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया और इम्तियाज की हालत गैर हो जाने पर इसे गवर्नमेंट इलामा इकबाल अस्पताल दाखिल करवा दिया गया, जहां वो अलसुब दम तोड़ गया। हलाक होने वाले 32 साल इम्तियाज के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर जख्मों के निशानात भी मौजूद हैं। इस हिलाकत पर अहले इलाका ने पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। दूसरी जानिब DPO सैयद अली मोहसिन ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खानेवाल मोहम्मद वक़ार अब्बासी ने कहा है कि मुजरिमाना सरगर्मियों को रोकना और अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। बिल्कुल अड्डा 12 मील पर कायम होने वाले नए और तहसील कबीरवाला के 7वें पुलिस स्टेशन की इफ्तिताही तकरीब से मेहमान खुसूसी की हैसियत से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नए पुलिस स्टेशन का क़याम अहले इलाका के देरीना मुतालबे के तनाजुर में अमल में लाया गया है। उम्मीद है कि नए पुलिस स्टेशन के क़याम से अहले इलाका को अपने मसाइल के हल में रिलीफ मिलेगा। DPO मोहम्मद वक़ार अब्बासी का कहना था कि पेशावराना फ़राइज़ में गफलत का मुजाहरा बददियानती है, जिसका सख्ती से नोटिस लिया जाएगा। इस मौके पर DSP ट्रैफिक चौधरी सज्जाद अहमद गुर्जर, DSP शहजाद समेत मुअज़्ज़िज़ीन की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। पंजाब स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2012 के तहत यूनियन काउंसिल की सतह पर मुकाबला जीतने वाली टीमों में तहसील सतह पर मंचनाबाद में मुकाबला जात शुरू हो गए हैं। मंचनाबाद में तहसील की सतह पर पंजाब स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2012 के तहत मुकाबला जात का इफ्तिताह रुकने पंजाब असम्बली मियां फिदा हुसैन वट्टू ने किया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि सेहत जिस्म को फरोग देती है और सेहतमंद जिस्म ही सेहतमंद दिमाग का ज़ामिन होता है, जबकि खेलों से मैदान आबाद और अस्पताल वीरान हो जाते हैं और मुआशरे में हम आहंगी की फिजा पैदा होती है। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब के इस इक़दाम को सराहते हुए कहा कि मुल्क भर में खेलों का फरोग होना चाहिए और खेलों का गुरूब होता हुआ सूरज फिर से तुलू हो गया है। इस मौके पर चेयरमैन फेस्टिवल मोहम्मद इकबाल जोया, मेंबर एलिमेंट्री मियां मुशफ़िक, इसके साथ साथ डॉक्टर रियाज, शाम मलिक आसिफ, उमर और मलिक बिलाल चौहान समेत शेख मोहम्मद अली भी इस मौके पर मौजूद थे। डेरा गाजी खान में झूठा मुकदमा दर्ज करने पर मुश्तइल अफराद ने पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए इंडस हाईवे ब्लॉक कर दी।
पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए मुजाहरीन का कहना था कि SHO सज्जाद बुखारी और इंस्पेक्टर गुलाम शब्बीर ने दुकानदार अब्दुल रज़ाक को चोरी का झूठा मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया, जबकि खाना लाने वाले उसके कजन अब्दुल लतीफ को भी थाने में बंद करके तशद्दुद का निशाना बनाया। मुजाहरीन का कहना था कि झूठे मुकदमे को खारिज करके गिरफ्तार किए जाने वाले दुकानदार को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। बाद अज़ान DSP सदर की जानिब से गिरफ्तार दुकानदार की रिहाई की यकीन दहानी पर मुजाहरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। खबरें अब सिंध धरती से। कराची में माहीगीर ने 40 फुट लंबी शार्क पकड़ ली, जिसे देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद फिशरी पहुंच गई। बिल्कुल, कराची में एक माहीगीर ने पाक भारत समुद्री हुदूद के नजदीक से 40 फीट लंबी शार्क को पकड़ लिया है, जिसे क्रेनों की मदद से साहिल पर लाया गया, जबकि माहीगीरों समेत अवाम की भी एक बड़ी तादाद मछली देखने के लिए फिशरी पहुंच गई है। माहीगीर के मुताबिक शार्क मुर्दा हालत में उनकी बोट से टकरा गई थी। तवील जिसामत की इस शार्क ने 2 बोट्स को भी नुकसान पहुंचाया। इस शार्क को मुख्तलिफ टुकड़ों में की सूरत में फरोख्त किया जाएगा, जबकि हजारों मन वजनी इस शार्क की चर्बी भी फैक्ट्रियों को बेची जाएगी। मजीद खबरों की जानिब पे बढ़ेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सिंध से ही मजीद खबरें शामिल करेंगे। डिप्टी कमिश्नर टंडुअल्लायार रफीक अहमद बरोड़ो ने कहा है कि तहफ़्फ़ुज़ टंडुअल्लायार को मॉडल जिला बनाने का अज़्म कर लिया गया है। बिल्कुल, टंडुअल्लायार में हफ्ता सफाई की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सफाई निस्फ़ ईमान है, इसलिए उन्होंने तलका को मॉडल जिला बनाने के लिए सफाई के अमल का इंतखाब किया है, जबकि आवाम से अपील की गई है कि वो वर्करों से मुकम्मल ताउन करें ताकि तलका में सफाई का निज़ाम बेहतर हो सके। उनका यह भी कहना था कि शहर के दाखिली और खारजी रास्तों से तजावुज़ात का खात्मा करके शाहराहों को वसी किया जा रहा है, जबकि मेन शाहराहों के अतराफ में बिजली के खंभे भी लगाए जाएंगे, जिससे शाहराएं रोशन होंगी। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द जश्न टंडुअल्लायार फेस्टिवल भी मुनक्किद किया जाएगा। इस मौके पर तलका म्यूनिसिपल ऑफिसर रज़ाउल्लाह घुमरो समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। दादू में सड़क की 4 साल से मरम्मत न करने के खिलाफ अवामी तहरीक की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। अवामी तहरीक तहसील जूही के सदर बख्श बरोही समेत दीगर कारकुनान 150 किलोमीटर पैदल मार्च करते हुए दादू प्रेस क्लब पहुंचे। इस मौके पर इन रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौजूदा हुक्मरान हालिया सैलाब और बारिशों में तबाह होने वाली सड़कों को तामीराती काम कराने के बजाय अपने घर की गलियां और सड़कें बनवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 4 साल गुजर जाने के बावजूद अब भी MPA MNAs और वुज़रा ने सिर्फ अपने अकाउंट्स भरे हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वाही पंडी से तहसील तक सड़क फौरी तौर पर तामीर कराई जाए, बसूरत दीगर वो एहतजाज का दायरा कार वसी करने पर मजबूर हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी की जिले क़यादत की नाइंसाफियों के खिलाफ 30 से ज़ायद लोगों का काफिला खुदसोजी के लिए टंडुअल्लायार से पार्लियामेंट हाउस के लिए रवाना हो गया है। 3 माह से जारी जियालों की मरहलावार एहतजाजी तहरीक शिद्दत इख्तियार कर गई है, जिसके बायस 30 से ज़ायद जियाले पीपल्स पार्टी तलका सेक्रेटरी मोहम्मद कासिम और लाला जाहिद गुल पठान की क़यादत में टंडुअल्लायार से हैदराबाद रेलवे स्टेशन रवाना हो गए। ये काफिला बरास्ता ट्रेन इस्लामाबाद जाएगा। टंडुअल्लायार से रवानगी के वक्त तालपुर स्टॉप और जवान मोरी के मकाम पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर मोहम्मद कासिम और लाला जाहिद गुल पठान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम शहीद बेनज़ीर भुट्टो के जानिसार हैं, तहम पीपल्स पार्टी के ज़िले सदर और MPA की नाइंसाफियों और हुकूक पर डाका डालने के खिलाफ खुदसोजी करने के लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मनपसंद अफराद को नवाजने का सिलसिला जारी है, जबकि कुर्बानी देने वाले जानिसार आज तक नौकरियों से महरूम है।
दादू में पनोहर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से गांव सादक पनोहर में तरक्याती काम न होने पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। दादू प्रेस क्लब के सामने किए गए इस एहतजाजी मुजाहरे में शरीक अफराद ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। मुकर्रीन ने इलाके के मुंतखब नुमाइंदों के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। प्रेस क्लब रोड पर 2 घंटे तक इस रोड को ब्लॉक किए रखा जिससे ट्रैफिक भी जाम हो गई। इस मौके पर मुजाहिरीन से खिताब करते हुए इमामुद्दीन पनोहर, आजम पनोहर, निजाम पनोहर और दीगर ने कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत को 4 साल गुजर गए हैं लेकिन ताहाल इलाके में कोई भी तरक्याती काम नहीं किया जा सका। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि स्कूल की ज़बूहाली का शिकार इमारत समेत दीगर तरक्याती काम जल्द से जल्द मुकम्मल किए जाएं। कराची के इलाके बगदादी में दुकान में सिलेंडर धमाके के नतीजे में 4 अफराद जख्मी हो गए। बिल्कुल धमाका बगदादी थाने के सामने वाक़ दुकान में पेश आया जिसके नतीजे में 40 साला शब्बीर, 25 साला अब्दुल लतीफ, 42 साला अब्दुल मनान और दीगर समेत 6 अफराद जख्मी हो गए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। यानी शाहिदीन के मुताबिक धमाके की आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई जिससे शहरियों में खौफ और हरास फैल गया। खबर नोकोट से कि नोकोट में यंग कायम खानी इत्तेहाद की जानिब से फंक्शनल मुस्लिम लीग के अहदेदार माजिद कायम खानी के बेहिमाना कत्ल के खिलाफ मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की गई। शहर के मरकजी बाजार से सराफा बाजार और मिल्क शॉपिंग सेंटर मुकम्मल तौर पर बंद रहे। नोकोट बंगला कायम खानी इत्तेहाद की रहनुमा रेहान कायम खानी, इसके साथ साथ सलीम कायम खानी, जावेद कायम खानी उर्फ छीदा की क़यादत में सैकड़ों कायम खानी बिरादरी के नौजवानों ने नोकआउट प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने अपने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर समारो पुलिस के खिलाफ नारे दर्ज थे। कायम खानी इत्तेहाद के रहनुमाओं ने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया कि समारो पुलिस ऑफिसर्स को फौरी तौर पर बरतरफ किया जाए और इनके कत्ल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कंदकोट में मुख्तलिफ थानों की पुलिस ने कार्रवाई करके 10 घरों को आग लगा दी जिससे कीमती सामान जल गया। इलाका मकीनों ने मीडिया को बताया है कि कश्मीर पुलिस ने किसी मुकदमे के बगैर कार्रवाई करते हुए गरीब हारियों के घर और फसलें जला दी हैं जो कि एक जुल्म की इंतहा है। उन्होंने वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह समेत आला हुकाम से वाक़े का नोटिस लेते हुए जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। इस मौके पर उन्होंने शदीद एहतजाज भी किया। मुजाहिरीन का यह कहना था कि कश्मीर और गिरदनवाह में जराइम पेशा अफराद की सरकूबी के बजाय बेकसूर शहरियों का जीना दूबर कर रखा है। मीरपुर खास में 6 डाकू समाजी रहनुमा के घर से लाखों रुपए के जेवरात और गैर मुल्की करेंसी लूट कर हो गए हैं फरार। जी हाँ बिल्कुल, मीरपुर खास में नामी पाड़े के इलाके में रिहाइश पजीर समाजी तंजीम के चेयरपर्सन जाहिदा ढेटो के घर पर होने वाले इस डाके में अहले खाना को यरगमाल बनाकर भारी मालियत की तलाई जेवरात, गैर मुल्की करेंसी, मोबाइल फोन्स और दीगर सामान लूट लिया जबकि डाकू बासानी फरार भी हो गए। इस हवाले से SHO टाउन ने कहा है कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं और इन्हें जल्द हिरासत में ले लिया जाएगा। नवाब शाह की बात करें जहां मदरसा मौल्लिम ने 12 साला तालिब इल्म को मार मार कर लहूलुहान कर दिया। नवाब शाह के इलाके जोनो मोरी के रिहायशी 12 साला अब्दुल गफ्फार जोनो को मदरसे के मौल्लिम ने मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाकर लहूलुहान कर दिया। दूसरी जानिब जख्मी बच्चे को पीपल्स मेडिकल अस्पताल नवाब शाह में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। बच्चे के चचा अब्दुल गनी का कहना है कि मौल्लिम के तशद्दुद से बच्चे की सर पर शदीद चोट आई है जिसे न्यूरो सर्जरी वार्ड में दाखिल कर दिया गया है। बच्चे के वालिदैन ने आला हुकाम से ये मुतालबा किया है कि मदरसे के मौलम को फौरी गिरफ्तार करके करारवाह की सजा दी जाए। मीरपुर खास के एक निजी स्कूल में 3 रोजा स्पोर्ट्स गाला की तकरीबात का आगाज हो गया है। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं आतिफ बलोच अपनी रिपोर्ट में। मीरपुर खास के निजी तालीमी इदारे शहबाज पब्लिक स्कूल की जानिब से स्कूल के तुलबा व तलबात को गैर निसाबी सरगर्मियाँ फराहम करने के लिए स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में मुनक्किद होने वाले स्पोर्ट्स गाला में नर्सरी क्लास से मैट्रिक क्लास तक के तुलबा व तलबात ने भरपूर हिस्सा लिया। नर्सरी से 4th जमात तक के तुलबा व तलबात के लिए म्यूजिकल चेयर, सेक रेस, खाने पीने के मुकाबले, फोन रेस, उबारा फैलाने के मुकाबले और PT शो समेत दीगर खेलों को रखा गया जिसमें नन्हे तुलबा व तलबात ने भरपूर हिस्सा लिया और एक दूसरे से बरतरी ले जाने की जद्दोजहद में दिखाई दी है। जबकि क्लास 5 से मैट्रिक के तुलबा व तलबात के लिए क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, रस्साकशी और दौड़ के मुकाबले शामिल थे। स्पोर्ट्स गाला के मौके पर स्कूल प्रिंसिपल उमर फारूक, टीचर समीउल्लाह, मिस उज़मा, मिस आलिया रशीद व दीगर टीचर्स के अलावा बच्चों के वालिदैन की बड़ी तादाद भी मौजूद थी जो कि खेलों के मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले बच्चों की हौसला अफजाई भी करते रहे।
मज़ीद खबरों की जानिब बढ़ेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सिंध की बात हो रही है। दादू में मकामी NGO सजाक सलमान ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम सेमिनार मुनक़िद हुआ, जिसमें कम उम्र में लड़के लड़कियों की शादियों के खिलाफ कानून में तरमीम का मुतालबा किया गया है। इस सेमिनार से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि कम उम्र की बड़ी वजह तालीम की कमी, जहालत, रस्म व रिवाज और दीगर अवामिल हैं जिनका खात्मा हुकूमत की जिम्मेदारी है। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत इस सिलसिले में मौसर कानून साजी करते हुए ज़बरदस्ती कम उम्री की शादियां रुकवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। मीरपुर खास में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने तालिब इल्म के कत्ल का फैसला सुनाते हुए 2 मुल्जिमान को सजाए मौत और 10 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म दे दिया। मीरपुर खास में 5 साल कबल अब्दुल समी के 2 दोस्तों अरशद और राशिद ने अगवा किया और उसके वालिद से तावान का मुतालबा कर दिया, जबकि तावान ना मिलने पर समी को कत्ल कर दिया, जिसकी FIR थाना सिटी में दर्ज की गई। इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज आरिफ भट्टी ने दोनों मुल्जिमों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि आज कोर्ट ने अब्दुल समी के कत्ल का फैसला सुनाते हुए दोनों मुल्जिमान को सजाए मौत और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में इन्हें 5 साल कैद काटना होगी। खबर कराची से। कराची में पुलिस ने जाली ज़राई अद्वियात तैयार करने वाली फैक्ट्री पर छापा मार के 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। कराची के इलाके गुलशन मेहरान में पुलिस ने एक फैक्ट्री में जाली ज़राई अद्वियात की तैयारी की जाने की इत्तला पर छापा मारकर कार्रवाई के दौरान भारी मिकदार में जाली ज़राई अद्वियात बरामद करके 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि फैक्ट्री को भी सील कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक मज़कूरा फैक्ट्री में तैयार की जाने वाली जाली ज़राई अद्वियात मुख्तलिफ कंपनीज की पैकिंग में फरोख्त की जा रही थी। सियाचिन में अपने फराइज की अंजाम दही के दौरान शहीद होने वाले नौकोट के जवान को आबाई गांव में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। 4 रोज कबल सियाचिन में 130 रेजिमेंट एम्बुलेंस फील्ड नर्सरी असिस्टेंट गिलगित बल्तिस्तान का फौजी जवान अब्दुल रज़ाक भट्टी अपनी ड्यूटी के दौरान ग्लेशियर गिरने के बायस दबकर शहीद हो गया, जिसकी नमाज जनाजा आबाई शहर फजल में अदा की गई है और वहीं सुपुर्द खाक भी किया गया। सिंध रेजिमेंट चोर छानवी के कैप्टन इरफान और फौजी दस्ते ने गार्ड्स ऑफ ऑनर पेश किया और सलामी दी। कबर पर फूलों की चादर भी चढ़ाई। अब्दुल रज़ाक भट्टी की नमाज जनाजा में इलाके की सियासी और समाजी शख्सियात के अलावा लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। सखर गुड्डू बराज कॉलोनी एम्प्लॉयज एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मुजाहरे की क़यादत गुल मोहम्मद ने की। इस मौके पर उनका कहना था कि मुख्तियार कानिब सखर के खिलाफ दरख्वास्त से उनके मेंबरान का कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा कि कब्जा माफिया रिहायशी प्लॉटों से मिट्टी उठा रहा है, जिसके बायस हमारे प्लॉट की ज़मीन तामीराती कामों के तहफ़्फ़ुज़ से नाकारा होकर रह जाएगी और लाखों रुपए के नुकसान का भी सामना होगा। उन्होंने IG सखर से अपील की कि प्लॉट पर से कब्जा खत्म करवाया जाए। कराची में गवर्नमेंट सेकेंडरी मिशन स्कूल को मलाला यूसुफजई से मंसूब करने की एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें सूबाई वज़रा और डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली ने भी शिरकत की। में गवर्नमेंट सेकेंडरी मिशन स्कूल को मलाला यूसुफजई से मंसूब करने की इफ्तिताई तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर वजीर तालीम सिंध पीर मजहरुल हक ने खिताब करते हुए कहा कि मलाला ने सवाद के घुटन और दहशत ज़दा माहौल में इल्म की शम्मा को रोशन किया। वो खवातीन के लिए एक मशले राह है। उन्होंने कहा कि बेनजीर भुट्टो ने मौत के आगे जिंदगी को अहमियत नहीं दी और आवाम के खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया। इस मौके पर उनकी आंखें आबदीदा हो गईं। उन्होंने मलाला यूसुफजई को देख कर कहा कि बेटा तुम भी बेनजीर बनना। बेनजीर को बता रहे तुम मारी जाओगी। मेरे सामने 16 अक्टूबर को 2 दिन पहले खुदा की कसम कहा छोड़ेंगे नहीं मुझे, लेकिन जाऊंगी जरूर। अपने पाकिस्तान के उन लोगों के पास जो आमरीत के चक्की में पिस रहे हैं उनके पास जाऊंगी। ये एक औरत का अज़्म और हौसला था। मलाला बेटा तुम्हें बेनजीर बनना है।
पीर मजहरुल हक ने इस मौके पर कहा कि ये प्रोग्राम इस स्कूल के बजाय किसी बड़े होटल में भी किया जा सकता था, लेकिन सेक्रेटरी एजुकेशन सद्दीक मेमन वाकई में असली मेमन है। उन्होंने मशवरा दिया कि ये पैसे स्कूल की तज़यीन और आइश में लगाए जाएं और प्रोग्राम स्कूल में ही मुनक्किद किया जाए। उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम बच्चों का है और बच्चों को कमरे से बाहर निकाल दिया गया है और टीचर्स खुद नशिस्तों पर बैठ गई हैं। भाई बच्चे शोर नहीं करेंगे तो क्या हम इस उम्र में शोर करेंगे? उनको बुलाएं आप बाहर बरामदे में, वो शोर करेंगी। और ये फंक्शन उनका है, वो उनको बिठाएं, वो बेचारियां बच्चियां बाहर बैठी हैं, टीचर्स अंदर घुसें। इस मौके पर मलाला का कहना था कि बच्चियों को पैगाम देती हूं कि वो मुल्क को तरक्की की जानिब गामजन करें और सियासत बुरी नहीं है, लेकिन इसको बुरा किया जा रहा है और हमारे मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट जमहूरियत को चलने नहीं दे रही। मैं मुस्तकबिल में एक सियासतदान बनना चाहती हूँ और बेनजीर भुट्टो और बाचा खान के विजन को आगे बढ़ाते हुए उनसे मैं बहुत इंस्पायर हूँ। और यहाँ पे जो लोगों को मैंने सुना उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया। और सियासत कोई बुरी चीज नहीं है, सियासत इसलिए बुरी है और आप लोगों को बुरी लगती है क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग हैं, एस्टेब्लिशमेंट है जो कि सियासी लोगों को काम करने नहीं दे रहा है। तकरीब से डिप्टी स्पीकर शाला रजा और सूबाई वजीर इत्तलात शाज़ अमरी और दीगर अफसरान और मलाला के वालिद यूसुफ जई ने भी खिताब किया। इस मौके पर बच्चों ने टेबलो भी पेश किया, जबकि इंतजामिया की जानिब से अजरक और टोपियां भी पेश की गयी। मलाला यूसुफ जई के नाम पर इस स्कूल की किस्मत तो संवर गई, ताहम इस तरह के कितने स्कूल कराची में अब भी कायम है जिन पर तवज्जो देने की जरूरत है। कैमरामैन शाकिर सुलेमान के साथ एसएम इरफान, वक्त न्यूज, कराची। मजीद खबरें शामिल करेंगे, लेकिन इस वक्त आपको लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां स्पीकर कौमी असम्बली डॉक्टर फहमीदा मिर्जा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं और उसी को हम ज़्यादा तरजीह, क्योंकि एग्जीक्यूटिव ने अपनी बात करनी है, लेकिन जो है कि पार्लियामेंट जो कि एक मेरी नज़र में सबसे अहम इदारा है, हर चीज़ की रेटिफिकेशन के लिए फिर वो पार्लियामेंट में आना होता है, तो पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे पास इतने फ्रेंडशिप ग्रुप हैं, आपको पता है, लेकिन कभी भी उनको एक्टिवेट नहीं किया गया। मैंने उन सारे फ्रेंडशिप ग्रुप्स को भी एक्टिवेट किया है कि हम वो सारे, क्योंकि आज अगर मुल्क के हवाले से या पाकिस्तान के हवाले से जितनी नेगेटिव परसेप्शन है उसको क्लियर करने की ज़रूरत है, और वो तभी होगी कि जब हमारे पार्लियामेंटेरियंस जाएंगे और अपने मुल्क के बारे में और क्या क्या हमने पार्लियामेंट में किया है, क्या हमारी पॉजिटिव चीज़ें हैं, हम उनको बताएं ताकि लोग भी आएँ, हमें आइसोलेशन में हम ना जाएं, लोग हमारे मुल्क को विज़िट करें। ट्रेड, इकॉनमी और जो दूसरी चीज़ें हैं, जो बहुत अच्छा हमारा मुल्क है, बड़ा खूबसूरत मुल्क है, हर किस्म की नेमतें हमारे मुल्क में हैं, लेकिन हमने ख़ुद अपने आप को बदनाम किया हुआ है। तो उसके लिहाज से मैं समझती हूँ कि पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी बहुत इंपॉर्टेंट है और जिस पे मैं बहुत एक्टिवली काम कर रही हूँ। मैं जब इंडिया गई तो मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि वो भी एक फ्रेंडशिप ग्रुप पाकिस्तान के हवाले से बनाए, जो उन्होंने राइट अवे एक्सेप्ट किया। उनकी स्पीकर ने, उन्होंने अपने पार्लियामेंट में। स्पीकर कौमी असम्बली डॉक्टर फहमीदा मिर्जा इस वक्त इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी और उनका कहना था कि सबसे बालादस्त इदारा पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी को वो मजीद आगे बढ़ाएंगी। बिल्कुल, उनका ये भी कहना था कि जो मुल्क का सॉफ्ट इमेज है, पार्लियामेंटेरियंस दुनिया भर को वो दिखा सकते हैं। अब कुछ बात करते हैं बलोचिस्तान के हवाले से। कोयटा में पश्तून स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन बलोचिस्तान ने सरकारी स्कूलों में कुतुब की ताखीर से फराहमी और स्कूलों की बिलावजह बंदिश के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए PSO के सूबाई जनरल सेक्रेटरी कमीर आगा अफगान ने कहा कि तलबा और तालिबात को बेहतर तालीमी मौक़ों की फराहमी और तालीमी इदारों में बेहतर तालीमी माहौल को बरकरार रखना हमारी जद्दोजहद का अहम मकसद है। हमने आवाम को तालीम की अहमियत और आफादियत से आगाह करने और इनमें तालीमी शऊर को परवान चढ़ाने के लिए मुहिम शुरू की है। उन्होंने कहा कि तलबा और तालिबात से अपील करते हैं कि वो नाखुशगवारी और नाख्वानदगी के साथ साथ जहालत के खात्मे की इस जद्दोजहद और मुहिम में हमारा साथ दें। उन्होंने कहा कि आवाम अपने 5 साल बच्चों और बच्चियों को स्कूल में दाखिल करके ज़िलाई और सूबाई सतह पर हुकूमत की तालीम दुश्मन पॉलिसी को अमली तौर पर काम करें। मीर बख्तियार खान डोमकी की अहलिया और बेटी के कत्ल के खिलाफ बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में शटर डाउन हड़ताल की गई, जबकि इस मौके पर पहिया भी जाम रहा।
सिब्बी में डोमकी ग्रुप के सैकड़ों कारकुनों ने वाक़े के खिलाफ कौमी शाहराह पर टायर जलाकर ट्रैफिक जैम कर दी, जबकि भाग, नौताल, डेरा मुराद जमाली, डेरा अलयार और जाफराबाद में भी मुकम्मल हड़ताल की गई, जिसके बायस जिंदगी मफलूज होकर रह गई और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। डोमकी ग्रुप ने जिम्मेदारों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। कराची से खैबर तक में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप रहिएगा वक्त के साथ।